Hello children, welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. Children, this is the fifth part of the sets, and today I am going to explain you complement of a set. Okay children, so for the introduction of the complement of the set I had already explained to you. So now here I will solve the exercise 1.5. So let's start. So the first question is here, that is let u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 2 4 6 8, and c is equal to 3 4 5 6. Find a dash b dash a union c whole dash a union b complement a complement whole complement. जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर डैश लगा होता है उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने यूनिवर्सल सेट को जो हमारे पास गिवन है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं. तो हम लिखते हैं u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. ए डैश का मतलब होता है बच्चे, फर्स्ट पार्ट में ए डैश की बात करते हैं. तो ए डैश का मतलब क्या बच्चे, कि जितने भी ए के एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे. ए डैश का मतलब क्या है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम रिमूव कर देंगे. तो कौन कौन से एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 था. तो यहाँ से हम जब 1 2 3 4 को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 6 7 8 9. एक ए डैश का मतलब होता है कि एक ऐसे एलिमेंट हम क्या करते हैं, जो ए के एलिमेंट्स होते हैं उसको अपने यूनिवर्सल सेट से सबट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में बोला बी डैश. बी डैश के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 4 6 8 है. All the even numbers are here, so I will remove all the even numbers. So what I will get, 1 then 3 then 5 then 7 and then 9. The third part क्या है बच्चे, थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है कि A यूनियन C होल डैश. तो सबसे पहले बच्चे A यूनियन C फाइंड करेंगे. तो A यूनियन C कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले A की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज द 1 2 3 एंड 4. इस तरीके से यहाँ पे यूनियन का सिंबल आएगा. उसके C की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 3 4 5 एंड 6. अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हम यूनियन की जब बात करते हैं तो हमें सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, 1 2 3 4 और यहाँ से आ गया 5 और 6. ये हमारा यूनियन हो गया. जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे A यूनियन C का होल डैश, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन C. So children, you can see one thing that 1 2 3 4 5 6 are here. So I will remove all these parts. I will not take all these parts. I will take only these three. So what is our answer? This is a 7, 8, 9. This is your answer. Now I am going to explain you the fourth part. So what is given here in this part? A union B whole complement. Okay. So now what you have to do? You have to do one thing. Here you have to find the, first of all you have to find out the A union B, then you will find the complement. Okay, so let's see how to find the A union B. So you can write down A union B is equals to, what to the value of A, 1 2 3 4 union B. These are 2 4 6 8. So the final answer is here, that is the 1 2 3 4 and 6 8. So I will remove all these parts. What will be our answer? A union B complement. I will not take 1 2 3 4 6 8. So 1 2 3 4 6 8. So 5 7, what 5 7 9. I will take 5 7 and 9. This is the complement of A union B. So now I am moving to the next part. This is the fifth part. What is given here? A complement का whole complement.
बच्चे जब हम किसी कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू ए, इस प्रॉपर्टीज को हम बता चुके हैं आपको। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो। So here it become a, so I know the value of a, that is the 1, 2, 3, 4. This is your answer. Okay, so after this, the sixth part, they are saying b minus c whole complement. So first of all I will find out the value of b minus c. What is the value of b? B is 2, 4, 6, 8, and this is the minus sign. Then after this 3, 4, 5, 6. Now I have to subtract. What is the meaning of b minus c? It means all the elements of b which are not in c. b के ऐसे एलिमेंट जो c में अवेलेबल ना हो। तो कौन कौन सी वैल्यू c में नहीं है? देखिए 4 अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है, बट 2 and 8 अवेलेबल नहीं है। ये आ गया b माइनस सी। जब हम b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से हम 2 और 8 को रिमूव कर देंगे। आई विल नॉट टेक दिस नंबर, आई विल नॉट टेक दिस नंबर, so I will write down all the remaining numbers like 1, 3, 4, 5, 6, 7 and 9. This is your answer. So I hope all of you understood this thing. Now I am moving to the next part. Okay, this is the question number 2. If u is equal to a, b, c, d, e, f, g, h, find the complement of the following sets. Okay, no issue. The first part I am going to explain you. This is the a equals to a, b, c. So now here you have to find the complement. So how to find the complement? You will remove these parts. What to write down? You will write down D, E, F, G and H here. For the second part, B is given here, that is the D, E, F, G. So what you will do here? B dash. So now what you will do? You will remove these part D, E, F, G. You will remove these one. So what you will take? You can take A, B, C, and after this A, B, C and H you can take. Okay, are you getting my point, everyone? Okay, after this what I can do, I'm moving to the next part, the third one. The third part is given here, C is equal to A, C, E, G. So if I talk about the complement of C, it become B, then C here I will not take the C, then D, then F, then H. And now the final part, that is the complement of D dash. So I will remove, I will write down A, I will write down B. No, I will not write down A because A is given here already here. So what I can say, I have to remove F, G, H, A. So first of all A will be removed, B will be here, then next part D will be here. This is the D, this is the B, and after this E will be here. Okay, and after this F, I will not take the F, A will be here, I will not take A, B, I have taken C, yeah, C will also here. So okay, fine. So what you are having? You are having D, B, E, C. So this is your answer, D, B, E, C. Okay, I hope all of you understood this thing. Now I am moving to the next part. T, what is given here? Taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complements of the following set. So they are saying natural numbers को हमको क्या करना है? universal set लेना है. I will write down u is equal to 1, 2, 3, 4 up to dash dash dash. Okay, so now here the first question is given here. What is the first question? First question is given here, x is such that x is an even natural number. So what is the meaning of its complement? Let me tell you how to write down the complement. अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, क्या कहता है कि बच्चे हम इवन नंबर को अगर रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x इज सच दैट x इज एन ऑड नंबर, क्योंकि क्या कर डैश का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो पार्ट गिवन है उस पार्ट को हमको रिमूव करना है, किससे? यूनिवर्सल सेट से। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाए? x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका जो आंसर हमारा आएगा क्या बोलोगे? x इज सच दैट x इज एन ऑड को हम चेंज कर देंगे इवन नेचुरल नंबर, ये क्या आ जाएगा आंसर? इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, आई एम राइटिंग द आंसर्स डायरेक्टली। ठीक है, थर्ड पार्ट का नेक्स्ट इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो इसमें पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे निगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर तो आते नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3।
तो यहाँ पे बोलेंगे x इज सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं हम लोग अपना। व्हाट इज x इज अ प्राइम नंबर, सो व्हाट विल से x इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना भाई। अगर इसमें करें x इज अ प्राइम नंबर तो x इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर कोई प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो व्हाट यू कैन से x इज सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि नंबर तो दो ही टाइप के हैं, तो प्राइम नंबर होगा या तो फिर कंपोजिट नंबर होगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। करें x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो हम क्या कहेंगे x इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, x इज सच दैट x इज a natural number, x is a natural number which is not divisible by 3 and 5. Okay, so I hope all of you can solve the remaining parts of this question. If you try to do these questions, if you find any kind of difficulty, just drop your message, I will solve that particular part. Now I am moving to the next part. What is given here? It is given here, universal set is given here, and the value of a given here, value of b given here, and I have to prove a union b whole complement is equal to a complement intersection b complement. So children, here I will prove the first part and you have to solve the second part. It is mentioned here a union b whole complement a dash intersection b whole complement. It is the De Morgan's law which I had explained earlier to you. So now what I will do, children, here, so first of all I will write down the a union b. So what is the value of a union b? That is the 2 4 6 8 union, and here the value of b, that is the 2 3 5 7. So what I will do, I will mix up all the elements. Now it becomes 2 3 4 5 6 7 and 8. Now I will find out the a union b whole complement. So now see, look at this line, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. The 1 is not here and 9 is not here, but all the numbers are here, so your complement will be 1 comma 9. So now I will take a dash. So what is the value of a dash? If I talk about the a dash, so these are 2 4 6 8. I will remove these numbers, so I will get 1 3 5 7 and 9. Now I will find out the b dash. B dash, what is the value of b dash? If I talk about the b dash, this is the value of 2 3 5 7, that is the b. So I will remove these numbers, so I will get 1, after this 4, after this 6, and after this 8, and after this 9. Okay, now I will do one thing, I will find out the intersection. Intersection means common term. So 1 is common, and which term is common? 9 is common. So you can say this is the 1 comma 9. So now look at this one, this is the first one and this is the second one. So what you can say? You can say from first and second, from first and second दोनों को मिक्सअप कर दिया तो हम बोल सकते हैं ये यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. डू द सेकेंड पार्ट बाय योरसेल्फ. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. करें ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे. तो चलिए हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द वेन डायग्राम. तो सबसे पहले बच्चे ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेट्स सी. देखो सबसे पहले मैंने तुमको बताया था, जब भी हम किसी नंबर का वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे हम एक काम करते हैं बच्चे, हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं. हम क्या ड्रॉ करते हैं? रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं. सो लेट मी टेल यू, फोर्थ की वैल्यू इक्वल होती है. तो लेट्स सी बच्चे, देखो हमारे पास जब भी हम इसकी बात करते हैं, देखो हमारे पास दो सेट होंगे इस तरीके से. मान लो एक सेट ये हुआ, एक हमने सेट ऐसे डिनोट कर दिया, एक सेट हमने ऐसे डिनोट कर दिया. देखना ध्यान से, ये सेकंड सेट हो गया. अब ये तो यहाँ पे क्या डिनोट करता है, तो यूनिवर्सल सेट हो गया. ये वैल्यू सेट ए की है, ये वैल्यू सेट बी की है. अब हमारे पास कितने सेट है? हमारे पास सेट है 2, ए और बी. अब बच्चे करना क्या है यहाँ पे, मेरी बात समझना. अब हमको फाइंड करना है इसका इंटरसेक्शन. हमको क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी हमारा हो गया. अब हमको इसके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, लेट मी टेल यू हाउ टू डू. हम यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट कर देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर. In that way you can understood well. See, like this, like this, like this, like this, like this. जितना भी ये आउटर पार्ट होगा, आउटर पोर्शन, like this. ये आउटर पोर्शन जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? ये रिप्रेजेंट करेगा
ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को, ये जो वैल्यू होती है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होती है। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो देखो यहाँ पर भी सेम चीज रहेगी। ये हमारा यूनियन सेट हो गया, एक हमारे पास सेट ए है और एक हमारे पास सेट बी है, ये दो सेट हमारे पास हो गए बच्चे। तो करना क्या, मेरी बात समझना यहाँ पे बच्चे, हम क्या करना चाहते हैं आपको, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स। ये देखो, इसको जरा जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है इसको हम जरा येलो कर देते हैं इस तरीके से, बात सुनना मेरी। ये हमने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से येलोइश कर दिया, ठीक है, इस तरीके से येलो कलर में कर दिया। तो ये सेट ए है, ये सेट कैसा बी है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चे, शेडेड रीजन होगा, मतलब इसका जो शेडेड रीजन होगा, ये यूनियन, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। अब ए डैश ए इंटरसेक्शन बी, ये तो ए इंटरसेक्शन बी होगी, ये वाला जो पार्ट है ये किसको डिनोट कर रहा है, येलो वाला पार्ट, ये पार्ट डिनोट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। तो हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, इसका मतलब क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ पार्ट होगा वो इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, लाइक दिस, ये पूरा पार्ट, ये टोटल, दिस पार्ट, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ये देख रहे हो आप, इस तरीके से जो साइड, बस कौन सा पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा, जो हमारे पास इस तरीके से। तो जो ये शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है, यही रीजन जो है हमको डिनोट कर रहा है हमारी किस वैल्यू को, ये डिनोट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, और ए डैश यूनियन बी डैश को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट यू be the set of all triangles in a plane if a the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree what is a। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कोई यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है बच्चे हमारे पास कि u इधर be the set of all triangles in a plane। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं इस तरीके से कि u is equal to x is such that x is a triangle, x is a triangle। भाई देखो हमारे पास क्या है ना, यहाँ पे गिवन है कि जो है ये क्या है, ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, एक्स इज अ ट्राइंगल। अब एक्स इज अ ट्राइंगल हो गया, ए क्या है, ये कह रहे हैं कि इधर सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, करें वन एंगल इसका क्या है, डिफरेंट फ्रॉम 60 है। तो मेरी बात सुनना, अगर इसका वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल, एक्स इज अ ट्राइंगल हुज, ऐसे लिख सकते हैं, एंड has at least one angle and has at least one angle, at least one angle, one angle। अब क्या कर रहा है, different from 60, यहाँ पे लिख लेंगे different from 60 डिग्री। अब बच्चे देखो एक एंगल कह रहे हैं, कोई ना कोई एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो अगर 60 डिग्री से डिफरेंट एंगल, तो इसके अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं बच्चे, तो हम ऐसे एंगल ले लेंगे जहां पे क्या हो, सेट कैसा हो जाए हमारे पास, जहां पर हमको 60 डिग्री का एंगल मिल जाए। और जब 60 डिग्री एंगल मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब क्या हो बच्चे, एक देखो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सेट दे रखा है, यूनियन सेट जो है ये ट्राइंगल का सेट है, इसमें सभी ट्राइंगल आ रहे हैं, हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल आ रहा है, हमारे पास आइसोसेलेस आ रहा है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है, हमारे पास ऑब्टयूज ट्राइंगल आ रहा है, हर चीज आ रही है। तो कह रहे हैं ये ए की वैल्यू क्या गिवन था कि द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। कह रहे हैं कि इसमें एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा, एटलीस्ट कम से कम एक एंगल, और एक से ज्यादा भी डिफरेंट हो सकता है 60 से। तो अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है अपोजिट। तो हमने क्या किया, हम ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसका एंगल कितना हो, 60 डिग्री का हो। चलिए देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या करें, 7 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, तो हमको इसको क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट करना है, लेट्स सी। तो ट्रू स्टेटमेंट करने के लिए देखो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास गिवन है ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश। अब देखो ए का हम यूनियन निकाल रहे हैं ए डैश, इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा यूनिवर्सल सेट। हमको यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे, हमको यहाँ से मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट। अगर करें फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, अब देखो फाइव डैश के साथ अगर इंटरसेक्शन कर रहे हो ए का,
इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? फाई मतलब होता है नल सेट। मेरी बात सुनना, फाई इज इक्वल टू नल सेट। फाई का मतलब नल सेट होता है, लेकिन फाई डैश का मतलब नल सेट नहीं होगा। फाई डैश का मतलब होगा यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट। फाई डैश का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन कर रहेगा तो यही कॉमन आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ए इंटरसेक्शन ए डैश, नो इशू। अब देखो ए और ए डैश में, मेरी बात सुनना, ए में मान लो कोई अगर ए में एक्स बिलोंग कर रहा है तो ए डैश में एक्स, नो एक्स नहीं होगा। तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन इसका होगा वो किसके इक्वल होगा? फाई के इक्वल होगा, क्योंकि नो टर्म इज कॉमन। यू डैश इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में तुम जानते हो यू डैश का मतलब क्या हुआ? यू डैश का मतलब हुआ, हम यहाँ सुनो, यू डैश का मतलब हुआ कि यू से हमने क्या किया है, ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। यू डैश का मतलब देखो, समझा मेरी बात को, अगर यू का मतलब यूनिवर्सल सेट होता है तो यू डैश का मतलब होता है नल सेट। यू डैश का मतलब क्या होता है? नल सेट। और नल सेट के साथ अगर तुम इंटरसेक्शन ए का कर रहे हो फाई के साथ में, तो वैल्यू भी तुम्हारी क्या आएगी? फाई आएगी। चलिए नेक्स्ट